اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ ناظرین اکرام، آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ میرے اپنے گاؤں چوٹالہ کے حوالے سے ہے، اور اس میں چوٹالہ کو سرسبز گرین اینڈ کلین بنانے کے لیے کوشاں نعیم اینڈ ہما فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے اس حوالے سے ہے۔ اور اس گاؤں کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جیسے ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں، ہر گاؤں میں گندگی کے ڈھیر، سیوریج کا کوئی نظام نہیں۔ ہمارا چوٹالہ گاؤں بھی کبھی ایسے ہوا کرتا تھا، جگہ جگہ آپ کو گندگی کے ڈھیر ملیں گے۔ اگر آج سے 5-7 سال پیچھے جائیں تو سیوریج کا کوئی نظام نہیں تھا، ہر جگہ گندگی ہوا کرتی تھی۔ لیکن 2018 سے پھر ایک شخص جو اسی مٹی میں پلا بڑا، جو اسی گاؤں میں پلا بڑا، بیٹھا دیار غیر میں ہے، لیکن اس کا دل اپنے گاؤں کے لیے، اپنی مٹی کے لیے اور اپنے اس پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ اپنے گاؤں سے یہ بات سٹارٹ کی جائے، میں اپنے گاؤں کو کلین اینڈ گرین بناؤں۔ اس شخصیت کا نام جناب ڈاکٹر نعیم بیگ ہے، جو ڈاکٹر نعیم بیگ صاحب نے یہ 2018 اس کی بنیاد رکھی۔ خود 3 دن کے لیے جب ادھر چوٹالہ تشریف لائے تو صرف 3 لوگوں سے یہ کام شروع کیا، جس میں جناب صوفی مرزا محمد یونس صاحب اور صوفی عارف صاحب، بھائی شاہ صاحب، اس میں 3 لوگوں پہ یہ مشتمل کمیٹی بنائی گئی۔ پھر لوگ اور شامل ہوئے، جن میں ابھی سپرویژن کا جو کام کر رہے ہیں بھائی ساجد اور غلام مصطفیٰ، یہ دونوں سپرویژن کام کر رہے ہیں، اور پورے گاؤں سے صفائی کا کام بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو کلین بھی کیا جا رہا ہے اور گرین بھی کیا جا رہا ہے چوٹالہ کو۔ یہ انشاءاللہ 2030 تک کا ویژن ہے۔ 2030 کو تک انشاءاللہ ہم نے اس چوٹالہ کو ماڈل ولیج چوٹالہ بنانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اکیلے تھے جب یہ کام شروع کیا، اب بہت سے الحمدللہ اس گاؤں میں جو بسنے والے ہیں وہ فی الحال رزق کی تلاش میں دیار غیر میں ہیں، تو وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اس میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ آئیے آج نعیم اینڈ ہما فاؤنڈیشن کے ہم تمام پروجیکٹس کا بھی جائزہ لیں گے، اور نعیم اینڈ ہما فاؤنڈیشن کیا کچھ کام کر رہی ہے وہ سارے دیکھیں گے، کتنے افراد اس میں کام کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیں گے۔ ڈاکٹر نعیم بیگ صاحب نے اپنی شریک حیات جناب ڈاکٹر ہما نعیم صاحبہ کے ساتھ مل کے 2018 میں نعیم اینڈ ہما فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اس وقت دونوں ڈاکٹر حضرات NHS انگلینڈ میں بطور ڈاکٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم ہما فاؤنڈیشن نے بنیاد 18 اکتوبر 2018 چسی رکھی۔ ڈاکٹر نعیم صاحب تو علاوہ میں، شاہد صاحب اور عارف صاحب موجود ہیں۔ اساں 4 آدمیاں نے بسم اللہ کیتی اور صفائی نے کام نہ آغاز کیتا۔ صفائی نے کام نال تقریباً 6 مہینے بعد اسی گرانیاں مستحق لڑکیاں جڑیاں کہ بے روزگار آئیاں، 20 مشیناں سلائی مشیناں انہوں نے دیتیاں تاکہ وہ اپنا روزگار کر سکن۔ اگے چل کے ساڈے بیلے دا راہ کوئی نہ آیا، اس دا اسی کوشش کیتی تے ڈاکٹر صاحب نال مشورہ کیتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خرچہ میں کرساں، زمین تسی زمینداراں کول چڑھا لو۔ میں انتہائی مشکور ہاں ڈاکٹر صاحب نہ کہ انہاں خرچہ کیتا، اور چوٹالے نے زمینداراں نہ میں انتہائی مشکور ہاں کہ جنہاں بغیر کسے ہلو جتنے اساں اجازت دیتی کہ جسنی زمین چویں رستہ گزرے، وہ کوئی اعتراض نہیں کرن لگا، اور اساں 3 کروں رستہ کٹ دیتا ہے بیلے نہ دریا نے ہاتھ توڑی۔ نعیم اینڈ ہما فاؤنڈیشن کی طرفوں ابھی بہت اچھا کام جا رہا ہے، اور کافی بنے کی غریباں کی مستحق لوگوں کی اسی انہیں دہلیز تک انہوں کی ہر مہینے فنڈ دے کے آنے ہیں اور خرچہ دینے ہیں۔
تو صفائی نے بہت اچھا کام جا رہا ہے. قبرستان وچ کافی کم ہوا ہے, بہت اچھا کم ہوا ہے, پودے لگ گئے اور صفائی کا بہت اچھا نظام ہو گیا ہے. ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਭਰਾਓ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਡਰਮ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜੀ. ਇੱਕ ਲੋਡਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਡਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 120 ਡਰਮ ਰੋਜ਼ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਜਿਲੇ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਕੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤੀ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਫੇਰ ਲਓ, ਸੁੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਥੱਕਦੇ ਕੋਈ ਥੋਕੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ. ਗ੍ਰਾਂ ਨੇ ਚੌਵਾਂ ਤਰਫ ਅਸਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਢੇਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਏ ਜੀ. ਔਰ ਹਰ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਲਵਾ ਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸकी ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. चौटाला की हर गली हर चौक में ऐसे ड्रम रखे गए हैं जिसमें लोग अपने घर का, दुकान का, गली का कूड़ा फेंकते हैं. नईम एंड हुमा फाउंडेशन के वर्कर इन ड्रमों को रोज़ाना खाली करते हैं और सारा कूड़ा एक मखसूस जगह पे तल्फ किया जाता है. लोग अपने घर का कूड़ा बाहर दरवाजे के सामने रख देते हैं, जो नईम एंड हुमा फाउंडेशन के वर्कर रोज़ाना की बुनियाद पे उन्हें इकट्ठा करते हैं और पूरे गांव का कूड़ा इकट्ठा करके एक मखसूस जगह पे तल्फ किया जाता है. ये अमल हर रोज़ यहाँ तक कि ईद के दिनों में और बिलखसूस ईद उल ज़ुहा के दिन शाम देर तक नईम एंड हुमा फाउंडेशन के वर्कर पूरे गांव चौटाला को साफ़ करने में मसरूफ़ अमल रहते हैं. चौटाला की हर छोटी बड़ी नाली को रोज़ाना की बुनियाद पे साफ़ किया जाता है और ये काम पहले सिर्फ नईम एंड हुमा फाउंडेशन के वर्कर करते थे. अब अल्हम्दुलिल्लाह अहलियाने चौटाला भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं, अपने घर अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखते हैं. हर गली आपको साफ़ सुथरी नज़र आएगी, हर नाली आपको साफ़ सुथरी नज़र आएगी. नईम एंड हुमा फाउंडेशन का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट चौटाला को ग्रीन बनाने का है, जिसके लिए एक नर्सरी कायम की गई है, जिसमें से अब तक तकरीबन 10,000 से ज़ायद पौधे अहलियाने चौटाला को मुफ्त दिए जा चुके हैं, जिनमें फलदार, फूलदार, सायादार दरख्त भी शामिल हैं. नईम एंड हुमा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चौटाला कब्रिस्तान को ख़ुसूसी अहमियत दी गई है. यह है इंसान की आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान. आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो राहदारी को भी मेंटेन किया गया है और दरख्त लगाए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पौधे लगाए गए हैं और तमाम कब्रों पे सफाई आप चेक कर लें. बाकायदा एक इधर वर्कर रखा गया है जो कब्रों की सफाई करता है. दाखिली और ख़ारजी दरवाज़े बनाए गए हैं, बाड़ लगाई गई है, अतराफ़ में राहदारी वहाँ से भी गुज़र रही है. ये कब्रिस्तान के अंदर वाली राहदारी है और वो जो मेन रास्ता गुज़र रहा है वहाँ दोनों साइडों पे बाड़ लगाई गई है ताकि कोई जानवर इन कब्रों पे की बेहुरमती ना करे. कब्रिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेंटेन किया गया है. आप देखें दरख्त साइडों पे लगे हुए हैं और पूरे कब्रिस्तान में दरख्त लगे हुए और सरसब्ज़. जैसे कहा गया है कि चौटाला को क्लीन एंड ग्रीन करना है. ये अल्हम्दुलिल्लाह हम आधा सफ़र तय कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ये हम सब ने मिल के, एक शख्स ने जो शमा जलाई है वो तो अपने हिस्से की जला रहा है, लेकिन अब ये हमारा काम है पूरी आवाम का, चौटाला की आवाम का, कि हम ये मिल के ये सारा काम करें. उस शख्स के साथ कंधे से कंधा मिला के हम चलें और अपने चौटाला को क्लीन एंड ग्रीन बनाएं. नईम एंड हुमा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बेला रोड का इजरा हुआ, जिसमें चौटाला के किसानों ने अपनी ज़मीन में से रास्ता दे के नईम एंड हुमा फाउंडेशन के साथ खसूसी ताउन किया. अब किसान अपनी फसल आसानी से ज़मीनों से अपने घर तक ले जा सकते हैं. नईम एंड हुमा फाउंडेशन 35 से ज़ायद मुस्तहिक घरानों की हर महीने राशन की सूरत में या नकदी की सूरत में मदद करती है. ये मदद उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बगैर उनकी दहलीज तक पहुंचाई जाती है. ये मदद 5 घरानों से शुरू हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह 35 से ज़ायद घरानों की जाती है. ये मदद
चौटाला के उन मुखय्यर हजरात के ताउन से की जाती है जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं। नईम एंड हुमा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ औकात में मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों और बच्चियों को, मदरसे की बच्चियों को इनामात भी दिए जाते हैं और ईद के मौका पर ईदी भी दी जाती है। ये लाइब्रेरी बनाई गई है ये जिसमें बच्चों के हवाले से भी बच्चों से लेके बड़ों तक की किताबें हैं। ये बच्चों के हवाले से बच्चों की मज़ाहिया कहानियाँ हो गई, लतीफ़े हो गए, ये सारे छोटी किताबें जो बच्चों के हवाले से हैं। फिर ये बड़ों के हवाले से तारीख़ी हों, मजहबी हों, तकरीबन हर किस्म की यहाँ पे किताब मौजूद है। नईम एंड हुमा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ़िल्टर प्लांट का भी एहतमाम किया गया है जिससे अहलियान चौटाला साफ़ और शफाफ पानी पीने के लिए लेके जाते हैं। आइए नईम एंड हुमा फाउंडेशन के हवाले से लोगों की आरा जानते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा नाम सुना था ना, डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर साहब जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मैं क्लिप्स वगैरह भी देखता था, जो इमेज वगैरह जितने भी थे अपलोड होते थे, लेकिन फिज़िकली फर्स्ट टाइम आज मैंने ये मॉडल गांव देखा है अपने इस इलाके में ना, होंगे लेकिन इस इलाके में ये मॉडल गांव है। नर्सरी किसी गांव में मैंने नहीं देखी। कब्रिस्तान इनका जैसे साफ था, मेरे ख्याल में शहरों में इतना साफ कब्रिस्तान ही है। और आप लोगों ने जो स्कूल में बच्चों के लिए जो आपने वो उसके ट्रीज़ के इर्द गिर्द बैठने की जगह बनाई है, मेरे ख्याल में ये एक्सपोजर है डॉक्टर साहब का, और वो इतने स्किल्ड हैं कि उन्होंने टीम भी ऑर्गेनाइज की हुई है। वहाँ पे बैठ के जो है ना मैनेज करना, ये सबसे बड़ा जो है ना काम है, क्योंकि खुद बंदा हो तो वो इंस्ट्रक्शन दे देता है, लेकिन वहाँ पे बैठ के साजिद साहब जो है मेरे ख्याल में इतने कैपेबल हैं कि मैं कहता हूँ इस इलाके में इतने कैपेबल लोग नहीं हैं जैसे इन्होंने काम किया, और आज दिल खुश हो गया और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। नईम हुमा फाउंडेशन ने चौटाला के लिए बहुत बड़ी काविश की है, ख़ास करके हमारे चौटाला के लिए कब्रिस्तान के लिए जो उन्होंने काम किया है। हमारे बाउजदाद की कब्रों की सफाई का जो उन्होंने बंदा रखा है या करवाते हैं हर साल, तकरीबन वो पक्का ड्यूटी देता है। तो काफ़ी लोग बाहर से आते हैं तो हमारे कब्रिस्तान की हालत देख के खुश होते हैं, पूछते हैं ये कौन है, किस बंदे ने। और नईम हुमा फाउंडेशन का नाम आता है डॉक्टर नईम मिर्ज़ा का। डॉक्टर नईम मिर्ज़ा ने हमारे चौटाले के लिए बहुत बड़ी काविश की है, और ख़ास करके सफाई मुहिम तो कब्रिस्तान के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम एंड हुमा फाउंडेशन जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब हमारे इस गांव के लिए बहुत ही अच्छा इक़दाम कर रहे हैं। सफाई के हवाले से हो या कब्रिस्तान की बेहतरी के हवाले से हो या और रफ़ाए आमा के काम, तो ये तकरीबन हर टाइम हमारे गांव के लिए वो बेहतर सोच रहे हैं, बेहतर इक़दाम कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से बल्कि पूरे अहले इलाका गांव की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस गांव को साफ़ सुथरा रखने के लिए, बेहतर करने के लिए वो हर लिहाज से वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद और ज़्यादा तरक्कियाँ अता फ़रमाए और बेहतर काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। माशाल्लाह जी, चौटाला नईम हुमा फाउंडेशन बेहतरीन काम कर रही है। चौटाले की सफाई के हवाले नाल, चौटाले की वेलफेयर के हवाले नाल, और माशाल्लाह जिस तरह एक प्लान है कि 2030 तक इंशाल्लाह चौटाला मॉडल विलेज बन जाएगा, और इंशाल्लाह वो ज़रूर बनेगा। डॉक्टर नईम साहब असां चौटाले ना फ़ख्र हैं। असी जितना भी फ़ख्र करिए ना वो घट है। जितना ये काम कर रहे हैं बेलौस हो गए, ठीक है, चौटाले की खिदमत कर रहे हैं, तो आंढ गुआंढ जितने भी ग्रां हैं ना असाने असी उन्होंने वास्ते एक नमूना। डॉक्टर साहब जनाब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने ग्राम वास्ते, सफाई के लिहाज से बहुत अच्छा काम है। नईम हुमा फाउंडेशन चौटाला सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने वर्कर बड़े अच्छे बंदे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम एंड हुमा फाउंडेशन बेहतरीन सफाई ना काम कर रही है साढ़े चौटाले ते असी इन्हें दाद देने जी, अच्छा काम शम कर रहे हैं। बेहतरीन डॉक्टर साहब, डॉक्टर नईम साहब, इन्होंने टीम जिंदाबाद जी, बेहतरीन। डॉक्टर साहब काम कर रहे ना चौटाले जितनी की वेलफेयर वो कर रहे हैं, साड़ी सोच और तवक्को तो ज़्यादा कर रहे हैं, और पूरे ग्रां की चाहिए ने
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ जितनी मेरी उम्र हो गई है इतना बेलौस चटाले की खिदमत किसी बंदे की आज तक नहीं करना तकिया। और भी काफ़ी ज़्यादा लोग पैसे वाले बेलौस खिदमत करने डॉक्टर नईम साहब और इंशाअल्लाह उन्होंने नाल असी जानी माली कोली फेली हर किस्म की सपोर्ट भी कर सा। इंशाअल्लाह असी शुक्रिया अदा करने डॉक्टर नईम साहब ने। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है चौटाले के हवाले से, चौटाले में सफाई के हवाले से। और सबसे बड़ा काम जो बेला रोड है जो बड़े बड़े लोगों ने नहीं किया और नईम हुमा फाउंडेशन ने इसको मिल के गाँव वालों की मदद के साथ वो रास्ता निकाला, उस पर भी अप्रिशिएट करते हैं। और कब्रिस्तान की जो 4 दीवारी है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये उनका जो है वो काम है। और गांव की सफाई, रोड पे भी सफाई जो इनके वर्कर करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं और मुबारकबाद देता हूं डॉक्टर नईम साहब को और पूरी टीम नईम हुमा फाउंडेशन की जो इस काम में जो काविशें करती है उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। नईम एंड हुमा फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। हम इनके काम से बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में भी ये ऐसा ही काम जारी रखेंगे। पूरे गांव में हर हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये सर। सब गांव के हवाले से गलियों की सफाई और सीवरेज का निज़ाम जो है, तो इनका विज़न है कि 2030 तक एक मॉडल विलेज बने और इंशाल्लाह इसकी तरफ वो कामयाब है। नईम एंड हुमा फाउंडेशन जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अकेला ही चला था मैं जानिबी मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जिस तरह डॉक्टर नईम साहब ने चंद लोगों के साथ नईम एंड हुमा फाउंडेशन की बुनियाद रखी और आज काफ़ी सारे लोग आपके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आएँ आप सब भी नईम एंड हुमा फाउंडेशन के साथ मिलकर चौटाला को एक मॉडल विलेज बनाएं ताकि इसको देखकर पाकिस्तान के सारे गांव साफ़ और सरसब्ज हो जाएं और हकदार बहन भाइयों की मदद की जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।